to the valley of the shadow of death. Your perfect love is crushing our fear. Even when I call in the valley of the storm of this life, one turn back now you want to appear. I will feel the wind, for my God is with me. If my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh Lord, you never let go, and the arm and do the song. Oh Lord, you never let go, every high and every low. Oh Lord, you never let go, Lord, you never let go of me. I can see a light that is coming for the heart that won't come. A glorious light we all know it coming. It will be a hand to the struggle, but I am that maker. If you know you will on the earth, I can feel the wind. For my God is with me. And if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh Lord, you never let go, to the calm and to the storm. Oh Lord, you never let go, every high and every low. Oh Lord, you never let go, Lord, you never let go of me. I can see a light that is coming to that heart that's hold on. There will be a hand to the shower, but after that is gone. Still I will praise you. Still I will praise you. I can see a light that is coming for the heart that hold on. There will be a hand to the shower, but after that is gone. Still I will praise you. Still I will praise you. Oh no, you never let go, and the coming to the storm. Oh Lord, you never let go, every high and every low. Oh, you never let go, Lord, you never let go of me. Praise the Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। We thank you for taking time to being with us today. और आज की सुबह आप समय निकाल करके आप यहाँ पे मौजूद हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We are thankful to the Lord for allowing us to enter into a new month. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें एक नए महीने में लेकर के आए, In fact, a new financial year. और हम कह सकते हैं कि नए वित्तीय वर्ष में लेकर के आए। Today we want to look into Gospel of John, chapter 19, verses 38 to 42. आज हम परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना की पत्री उसका 19 अध्याय 38 आयत से लेकर के 42 आयत तक पढ़ेंगे। Gospel of John, chapter 19, verses 38 to 42. After these things, Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, though a secret one because of his fear of the Jews,
asked Pilate to let him take away the body of Jesus. Pilate gave him permission, so he came and removed his body. Nicodemus, who had at first come to Jesus by night, also came, bringing a mixture of myrrh and aloes, weighing about 100 pounds. They took the body of Jesus and wrapped it with the spices in linen clothes, according to the burial custom of the Jews. Now there was a garden in the place where he was crucified, and in the garden there was a new tomb in which no one had ever been laid. And so, because it was the Jews' day of preparation and the tomb was nearby, they laid Jesus there. आइए हम परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की पत्री उसका 19 अध्याय 38 आयत से लेकर 42 आयत तक पढ़ेंगे। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। The response of Jesus of Arimathea and Nicodemus to the death of Jesus was simple. They organized the burial of Jesus. और जब जो अरिमतिया का यूसुफ था और निकोदेमुस था, उनका जो यीशु मसीह की मौत के ऊपर प्रतिक्रिया थी वो बहुत साधारण थी। उन्होंने यीशु मसीह को गाड़े जाने की प्रक्रिया का इंतजाम किया। The tomb of Jesus is described in all the 4 Gospels. जब हम परमेश्वर के वचन में चारों सुसमाचार में देखते हैं तो यीशु मसीह की कब्र के बारे में सभी में बताया गया है। We see the body of Jesus has been emblemed with huge quantity of spice, indicating the generosity of Joseph of Arimathea and Nicodemus and those who were with him. और यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो यीशु मसीह का शरीर था उसको बहुत सारे सुगंध द्रव्यों के साथ रखा गया, जो हमें ये दिखाता है कि अरिमतिया का यूसुफ, निकोदेमुस और जो उनके साथ थे उनका यीशु मसीह के प्रति कितनी उदारता दिखाता है। हमें We can see the whole process must have completed in rush as the Sabbath is fast approaching to them. और हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये जो सारा का सारा प्रक्रिया होगी ये बहुत जल्दीबाजी में हुई होगी, क्योंकि सबत का दिन निकट आ रहा था। As soon as the process is completed, the tomb is sealed. A guard is put to prevent the body. और जैसे ही ये सारी प्रक्रिया खत्म हुई तो जो यीशु मसीह की कब्र थी तो उसको आगे से ढक दिया गया और उसके बाहर एक गार्ड को यानी एक सिपाही को बैठा दिया गया, जो कि यीशु मसीह की जो उसके अंदर शरीर पड़ा हुआ था उसकी देखरेख कर सके। The incident, it tells us to emphasize the reality of the death and burial of Jesus Christ. और ये यहाँ पे इसलिए ये जो कहानी इसलिए दी गई है ताकि इस चीज का जो मुख्य जिस चीज के ऊपर प्रभाव डालती है वो ये है कि यीशु मसीह की मौत और उसको गाड़े जाने के ऊपर। It is clear from these 4 Gospels that rumors has been circulated either Jesus did not die or his body has been stolen by his disciples. और जब हम परमेश्वर के सुसमाचार में देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसी अफवाहें उड़ रही थी, ऐसी अफवाहें फैल चुकी थी कि या तो यीशु मसीह की मृत्यु ही नहीं हुई है या फिर यीशु मसीह की जो मुर्दा शरीर है वो उसके चेलों के द्वारा चोरी कर लिया गया। When everyone has abandoned Jesus in the darkest hour, Joseph and Nicodemus, they have acted in generosity. और यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब रात के उस समय में सब लोग यीशु मसीह को छोड़ करके जा चुके थे, तब अरिमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस जो था उन्होंने बहुत उदारता दिखाई। And one thing we learn
in our lives, if you haven't learned, then in the coming days you may learn, there will be a time where everyone will abandon us. और हमारे जीवन में हमें भी ये सीखना होगा कि या तो हमने नहीं सीखा तो हम आने वाले समय में सीखेंगे कि ऐसा एक समय जरूर आएगा जब सबके सब हमें छोड़ करके चले जाएंगे। It would be a near ones, it would be friends, it would be relative. There will be a time where we will be feeling the loneliness, we will be alone sometime in our life. और ऐसा हमारे जीवन में समय जरूर आएगा जब हमारे चाहे वो नजदीकी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे मित्र हो, जब हमें छोड़ करके चले जाएंगे और हम अपने जीवन में अकेला महसूस करते हैं। But the good news is this: the scripture tells us, the father or mother they may forsake us, but the Lord will never leave us nor forsake us. परंतु हमारे लिए अच्छी खबर क्या है कि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि तुम्हारे माता और पिता तो तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हें छोड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर जो है वो ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। Joseph of Arimathea has taken permission from Pilate to take Jesus down from the cross and have him buried in his own tomb. और यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो अरिमथिया का यूसुफ था उसने पिलातुस से जाकर के विनती करी और उससे अनुमति ली और पिलातुस ने उसकी विनती को स्वीकार किया। उसने कहा कि क्या वो यीशु को क्रूस पर से उतार करके उसको ले जा करके कब्र में रख सकता है। And we find here Nicodemus assisting Joseph in the burial by bringing a large quantity of spices to anoint the body of Jesus Christ. और यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो निकोदेमुस था उसने भी जो यूसुफ था उसका सहायता करी और वो बहुत एक भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में गंधरस को लेकर के आया और उन्होंने यीशु मसीह की जो मुर्दा शरीर था उस गंधरस के साथ उसको उन्होंने अभिषेक किया। Someone's dead body is something that will never demonstrate any kind of affection. और जो किसी का मुर्दा शरीर होता है उससे किसी को भी कोई भी उसकी तरफ स्नेह नहीं दिखाता। It will surely not produce anything. और जो मुर्दा शरीर है उससे ज़रा कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। It will surely never perform any kind of miracles. It will surely never listen any kind of our talks or prayers to him. और जो एक मुर्दा शरीर है वो कोई भी हमारे किसी भी चीज का उत्तर नहीं दे सकता और कोई भी चमत्कारों को नहीं कर सकता। People may say even the body of Jesus was valueless. और लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो यीशु मसीह का मुर्दा शरीर था उसकी भी कोई कीमत नहीं थी। He was unmarried. और यीशु मसीह जो थे उनकी शादी नहीं हुई थी। He was poor. वो एक गरीब घर में उन्होंने जन्म लिया था। He had no inheritance to pass on. और यीशु मसीह के पास ऐसी कोई विरासत भी नहीं थी जो वो किसी को दे सके। Those who expected deliverance ended up with embarrassment. और यीशु मसीह से जिन्होंने चाहा था कि उनको छुटकारा मिलेगा, उनके लास्ट में अंतिम में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। We find here Joseph of Arimathea does something that is generous and showing love and affection to the body of Jesus without expecting anything in return. वो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो अरिमथिया का यूसुफ था उसने यीशु मसीह के शरीर के लिए बहुत कुछ किया। उसने यीशु मसीह के शरीर की तरफ स्नेह दिखाया, उसकी तरफ प्यार दिखाया बिना किसी चीज की उससे आशा रखते हुए। And that's the real worship. वो यही एक सच्ची आराधना है। Without expecting, without thinking that if I do this, Lord will do that for me, without having any kind of consumer mentality. When we worship God, that's the true and real worship. और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं ये सोचते हुए कि हमें उससे कुछ भी वापस में नहीं चाहिए, कि जब मैं उसके लिए ये करूंगा तो वो मेरे लिए ये करेगा, और जब हम एक अपना ग्राहक वाली सोच को पीछे रखते हैं, जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो सच्ची आराधना मानी जाती है। We should expect things from the Lord. हमें परमेश्वर से चीजों को जरूर ये सोचना है कि परमेश्वर हमें देगा। And we must have a desire that the Lord is going to provide. और हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी सब जरूरतों को पूरा करेगा। But if in case the Lord doesn't give us, that should not stop us worshiping Him. हो सकता है कि अगर परमेश्वर हमें ना दे वो सब कुछ, तब हमें परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ना। In the burial of Jesus, we find money becomes a way to ascribe the eternal values through the use of the temporary value. और यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो पैसा था वो एक ऐसा जरिया बना जिसने वर्णन करा
कि जो कुछ समय के लिए चीजें हैं, जिसकी जो मूल्य है वो कुछ समय के लिए है, वो चीज बदल करके इटर्नल वैल्यू यानी कि अनंत काल के जीवन की चीजों के में बदल गई। For Joseph of Arimathea, money could not have lasted forever. वो अरिमथिया के यूसुफ के लिए जो पैसा था वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। If he did not spend it, अगर वो उसका खर्च यहाँ पे ना करते, his descendant would have spent the money. जो उसके आने वाले बच्चे थे, उत्तराधिकारी थे, वो उसका इस्तेमाल कर But लेते। what we learn from Joseph and Nicodemus is this: the way they use the money. और यहाँ पे हम अरिमथिया के यूसुफ और निकोदेमुस के जीवन से क्या देखते हैं कि उन्होंने जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल किया, Money which has a temporary value, और पैसा जिसका कि कुछ समय के लिए, जिसका कुछ समय के लिए मूल्य होता है, especially or only for the believers or only for following Jesus, money has a temporary value. खास करके उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन या यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उनके लिए जो पैसा है वो हमेशा के लिए मूल्य नहीं रखता, उसका मूल्य कुछ समय के लिए रखता है। And all of us, we need money in our lives. और हम सबको अपने जीवन में पैसे की जरूरत है। Without money, we can't survive. और बिना पैसे के हम लोग अपने जीवन व्यतीत नहीं कर Either a सकते। family, a ministry, or business, for everything we need money. Money is like oxygen to our lives. और चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे हमारा व्यवसाय हो, चाहे परमेश्वर की सेवा हो, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। जो पैसा है वो एक तरह से हमारे जीवन की ऑक्सीजन बन चुका है। Again and again, the scripture tells us not to put the trust on money. और परमेश्वर का वचन हमें बार बार ये चीज बताता है कि हमें पैसे के ऊपर जो अपना भरोसा नहीं रखना। And we find that the way Joseph and Nicodemus, they spent their money, और हम यहाँ क्या देखते हैं कि जिस तरह से यूसुफ, अरिमथिया के यूसुफ ने और निकोदेमुस ने पैसे का इस्तेमाल किया, it becomes an eternal value. वो उस समय क्या हुआ, उसकी जो वैल्यू थी, जो उसका मूल्य था, वो हमेशा के लिए हो गया। The temporary value of money has been transferred into something that can last for eternity. और जो पैसे का मूल्य जो कुछ समय के लिए है, वो उस चीज में बदल गया जिस चीज की जो वैल्यू, जो मूल्य है, वो हमेशा के लिए है। The way they spend the money, it demonstrates us it's not for their own benefit, but for the benefit of generations to come. और यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, वो हमें ये बताता है कि वो पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, परंतु उसके द्वारा उनके आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा हुआ। Generosity always builds a relationship. वो जो उदारता है वो हमेशा एक रिश्ते को बनाती है। In fact, we can start relationship simply through our generosity. और या फिर हम एक रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं अपनी उदारता दिखाने के जरिए से। One nation giving to another nation, one church giving to another church, one believer giving to another believer, one minister of God giving to another minister of God. We can just build the relationship by giving. वो एक जो देश है वो दूसरे देश को दे रहा है, एक चर्च दूसरे चर्च को दे रही है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को दे रहा है, एक परमेश्वर का दास अपनी मिनिस्ट्री से, अपनी सेवकाई से दूसरी सेवकाई की मदद कर रहा है, और हम ऐसी तरह से रिश्ता बना सकते हैं अपने देने के जरिए से। And we should not forget, money is always spiritual. और हमें ये नहीं भूलना है कि जो पैसा है वो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आत्मिक है। It is the Lord who has given it. और ये परमेश्वर ही है जिसने हमें दिया है। It is the Lord who is the owner of it. और ये परमेश्वर ही है जिसका वो सब कुछ है। And we must spend it the way He wants us to spend. और हमें उसी तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम इसका इस्तेमाल करें। And I would say I am guilty. I have not done the proper spending. और हम भी इस बात को लेकर के अपने मन में कहीं ना कहीं पछताते हैं कि हमने सही तरह से पैसों का इस्तेमाल नहीं किया। And I think that would be the same for many of us. We have spent so many things which may not have an eternal value. और ये हो सकता है हम सब में से बहुत लोगों के लिए ऐसा होगा, हम ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं या उड़ाते हैं जिनकी की अनंत काल के लिए कुछ मूल्य नहीं। But at the same time, I believe many of us, we have come forward
and to think about eternal values that money can bring. और ऐसे उसी समय में ये भी हो सकता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने आगे आकर के उस चीजों के बारे में सोचा हो जो कि पैसा हमेशा अनंत काल के लिए जो चीजें अनंत काल के लिए मूल्य रखती हैं उसके लिए पैसा लगाने की सोची हो। Joseph of Arimathea and Nicodemus' generosity, it tells us and it makes us very clear that Jesus had a value in their lives. वो यहाँ पे अरिमथिया का यूसुफ और निकोदेमुस के जीवन से हमें ये पता चलता है जो उन्होंने उदारता दिखाई कि यीशु मसीह का उनके जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान था। When a minister of God, when a church chooses to give, it helps the other person to carry out in their vision, to carry out in their plans. और जब कोई इंसान, कोई एक विश्वासी या कोई एक परमेश्वर का दास पैसा देने के बारे में सोचता है या किसी को पैसा देते हैं तो वो पैसा जो है वो एक मिनिस्ट्री या एक सेवकाई को आगे लेके जाने में मदद करता है। उनकी जो सोच है, उनका जो विजन है, जो दर्शन परमेश्वर ने उनको दिया है, उस दर्शन को आगे लेके जाने में उसकी मदद करते हैं। Nicodemus and Joseph, they could have spent their money in other ways, but they gave importance to the body of Jesus Christ by being generous and to give a proper burial to his dead body. और यूसुफ अरिमथिया का यूसुफ और निकोदेमुस जो थे वो अपने पैसे को कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पैसे को यीशु मसीह के शरीर के ऊपर इस्तेमाल किया अपनी उदारता को दिखाते हुए, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो यीशु मसीह से प्रेम करते थे। How different the world will look if all of us we thought and made giving as our top priority. और अगर हम देने को, लोगों को कुछ ना कुछ देने को अपने जीवन का सबसे एक बड़ी चीज बना ले तो हम सोच करके देखेंगे जो संसार है वो किस तरह से बदल जाएगा। And abundance and grace, they call us to be generous. और abundance यानी कि भारी मात्रा में होना और परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें कहता है कि हमें उदार बनना है, हमें उदारता दिखानी है। We know the tomb was not the end of the story. हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह की कब्र थी वो कहानी का अंत नहीं था, because they gave a proper burial to the body of Jesus Christ, because they invested in the coming generation. Today we have come to know about the Lord Jesus Christ burial and his resurrection more clearly. और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि यीशु मसीह को एक अच्छी तरह से उनकी जो शरीर था उसको एक अच्छी तरह से सारी सभा करी, जिसमें उन्होंने यीशु मसीह के शरीर को एक अच्छी तरह से गाड़ा और उन्होंने अपने आने वाली जो पीढ़ियां थी उनके लिए कुछ किया। और आज के दिन हमने क्या देखा कि यीशु मसीह की जो गाड़ा जाना और उनका पुनरुत्थान था उसके बारे में हमने अच्छी तरह से सीखा। During this Lent season, let's examine our hearts and ask the Lord how God is calling us to be generous and to take care of his body, that is his church. और आज इस समय में जो लेंट का समय चल रहा है, जो सीजन चल रहा है, हम इस समय में अपने दिलों को खंगालें और सोच करके देखें कि परमेश्वर हमें किस तरह से चाहता है कि हम आगे आए और परमेश्वर की शरीर यानी कि परमेश्वर का जो चर्च है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। Always there will be a need in our lives and in our ministry. और हमेशा हमारे जीवन में और हमारे परमेश्वर की जो सेवा करते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जरूरतें रहती हैं। Let's come together and take care of his body, his church. तो हम सब आए, मिल करके आगे आए और मिल करके परमेश्वर की चर्च यानी कि परमेश्वर के शरीर यानी कि उसकी जो चर्च उसका शरीर है उसका हम ध्यान रखें। At the same time, let's not forget to seek God's wisdom and let's spend the money the way God wants us to spend it. और उसी समय में परमेश्वर की बुद्धि को ना भूलें और हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर से समझ मांगे कि हम किस तरह से अपने पैसे का इस्तेमाल परमेश्वर के कामों के लिए कर सकते हैं। Gospel of Matthew chapter 6 verse 20, it says, "Store up for yourself the treasures in heaven." परमेश्वर का वचन हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसकी 20 आयत में ये बताता है कि हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। We cannot take our treasures definitely with us. और हम मरने के बाद अपने धन को, अपने पैसे को, अपनी दौलत को अपने साथ नहीं लेके जा सकते, but definitely we can send them ahead of us. परंतु हम अपने मरने से पहले अपने उस धन को अपने से आगे भेज सकते हैं। As long as we are on this earth, God gives an opportunity
to glorify Him, to take care of His body. और जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हमें परमेश्वर ये मौका देता है कि हम परमेश्वर की जो शरीर उसकी चर्च है उसको किसी तरह से महिमा दे सकें। Joseph and Nicodemus, they took care of the body of Jesus by spending a huge amount. They were generous more than spending. वो यहाँ हम क्या देखते हैं कि अरिमथिया का यूसुफ और निकोदेमुस वो बहुत उदार थे, उन्होंने बहुत उदारता पूर्वक यीशु मसीह के शरीर के लिए अपने पैसे को खर्च किया। May the Lord help us. और परमेश्वर हमारी मदद करे Even during this Lent season, to take care of His body, that is His church, the way He wants us. और जिस तरह से परमेश्वर हमसे चाहता है हम उस तरह से इस लेंट के समय में परमेश्वर की चर्च यानी कि परमेश्वर के शरीर का हम ध्यान रख सकें। There would be many more thoughts what had happened when the body of Jesus was in the tomb. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऐसे सोच आती हैं कि जब यीशु मसीह का शरीर उस कब्र के अंदर था तब क्या हुआ होगा। But on this day we want to see how Joseph and Nicodemus, they were generous to take care the body of Jesus Christ. तो हम आज ये सीखेंगे कि परमेश्वर का जो दास यूसुफ अरिमथिया का था और निकोदेमुस था, उन्होंने किस तरह से अपनी उदारता दिखाई और किस तरह से उन्होंने परमेश्वर के शरीर यानी उनके बॉडी का ध्यान रखा। Shall we look to God in prayer? और आइए हम परमेश्वर की ओर देखेंगे प्रार्थना में। Heavenly Father, we thank you. आइए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for the wealth and the positions that you have given in our lives. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं उस सारे धन के लिए, उस सारी पूंजी के लिए और उस सारे पोजीशंस के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। Everything it has come from your hands. तो परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों से आया है। And Lord, we pray that you will give us the wisdom and the knowledge. तो परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि और वो ज्ञान दे, समझ दें to use it wisely. कि हम इसको समझदारी से सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। The money may have the temporary value, but it can be used for eternal value. और जो पैसा है उसका हो सकता है कुछ समय के लिए उसका मूल्य हो, परंतु हम उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसका अनंत काल के लिए मूल्य बन जाए। Lord, we pray that you will help us to see the needs in the body and to come forward and to be generous. परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वो अकल बुद्धि समझ दें कि परमेश्वर हम वो उन जरूरतों को देख सकें प्रभु जो तेरे लोगों की है, तेरे शरीर की, तेरे चर्च की, और हम आगे आकर के उसकी सहायता कर सकें। Help us, O Lord, to worship you in spirit and in truth. और परमेश्वर हमारी मदद करिए कि हम आत्मा में और सच्चाई में प्रभु तेरी आराधना कर सकें। Lord, we pray that you will give us a heart not to be a consumer mentality. परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें एक ऐसा हृदय दें जो कि ग्राहक की तरह सोच ना रखता हो, But help us to be a true worshipper in all through our lives. तो परमेश्वर हम आपका से ये मांगते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर कि आप हमारी मदद करें कि हम अपने पूरे जीवन में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर एक सच्चे आराधक बन करके रह सकें। Thank you, Father, for bringing us together. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं हम सबको एक जगह पे एक साथ लेके आने के लिए। We pray, O Lord, if there is a need in the body, help us to see them and to meet the needs of the people the way we can, the best way we can, O Lord. परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करिए कि हम उन जरूरतों को देख सके प्रभु जो तेरे शरीर में तेरे लोगों की है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और हम जिस तरह से प्रभु जो अच्छे तरीके से उनकी मदद कर सके उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। Thank you, Lord, for hearing our prayers. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, Amen. आमीन। Thank you. God bless you all for taking time to be with us for a few minutes. हम आपका धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपको आशीषित करे इस समय के लिए जो आपने समय निकाल करके हमारे साथ इस समय शामिल हुए। Thank you. We will meet tomorrow for the Easter service. और हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम कल पुनरुत्थान यानी कि ईस्टर सर्विस के लिए मिलेंगे। Thank you. God bless you all. धन्यवाद और परमेश्वर आप सबको आशीष दे।